Am I audible? One second. Yes, ma'am, you are audible. Okay. So if you're comfortable, can we start? Yes, yes, ma'am. All right. Good morning, Isha. How are you? I'm fine, ma'am. All right. Please introduce yourself. Yes, yes, ma'am. My name is Isha Pal. The meaning of my name is wish, and I think all of my inner willpower motivates me to give my best in every work. I am from Kochbihar district of West Bengal, which is also known as Heritage City. बात करूं मैं अपनी एजुकेशन की आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन हॉर्टिकल्चर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग. Now, coming to my family, I have three other members in my family: my mother, my brother, and my sister in law. Some glimpses of my hobbies are I love to sing, especially Robindra Sangeet, and play guitar in my free time. That's all from my side, ma'am. If you want to know more from me, I'm happy to answer, ma'am. Okay. All right. So Isha, you have so many skills, like you sing also, and you have that uh, postgraduate degree as well. And you have so many other options to pursue in as a career. Like you can become a good famous singer, or you can do your own business using the degree of horticulture. Landscaping is something which is, on boom nowadays. So why do you want to become an AFO only? Ma'am, when I am, okay. Ma'am, when I entered in agriculture university, I was amazed by knowing the different science behind the crop production, and and that from that day, I wanted that I want to be in this sector only. This sector is too much flourishing, and for 46% population of our India only joined in this sector. So from that day I want to join this sector, and in my graduation I want to know from my senior that there is a post name that is known as agriculture field officer, and from that day I want to join this AFO. ओके तो जैसे कि आपने बताया लाइक आपने जब ग्रेजुएशन किया तो आपने हॉर्टिकल्चर से किया था राइट तो विलिंगली आपने एग्रीकल्चर के ऊपर हॉर्टिकल्चर चूज किया या फिर क्या रीजन था हॉर्टिकल्चर चूज करने का एंड नाउ अब एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आपको बनना है तो ये एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मैम एक्चुअली वो मार्क्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है यूनिवर्सिटी में. तो मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे एक हॉर्टिकल्चर ही मिला, एग्रीकल्चर नहीं मिला, इसलिए मैं हॉर्टिकल्चर में ज्वाइन. ओके ऑलराइट आपने मनरेगा स्कीम के बारे में सुना है यस मैम. व्हाट इज इट Manrega is a scheme. The full form of Manrega is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, which was introduced in India in the year 2005. Firstly, it was named as Narega. In 2009, it was changed the name. It was Manrega. And now there was Parliament passed a bill that is known as VVG Ram. In this Parliament, also the name was changed to VVG Ram. In this scheme, the government offered the unsecured sector 100 days of employment. Yes, ma'am. Yes. ओके क्या इसमें फीमेल्स के लिए कुछ स्पेशलिटी है इस स्कीम में Yes, ma'am. In this scheme, there are one third member should be female. In this, beneficiaries yes okay beneficiaries should be female. Yes, ma'am. Okay, all right. So what do you understand by Kisan call centers and what are their uses or you can say what are they used for? Kishan call center is a by where calling farmer can get benefits from calling. There are farm tail advisors who advise farmers about their queries. This is Kishan call center, ma'am. There is a specific number for this. Okay. So ईशा supposedly एक सिचुएशन मान लेते हैं लाइक अभी आप वेस्ट बंगाल में हैं ऑलराइट तो अगर Yes. आपको साउथ साइड पोस्टिंग मिल जाती है विच इज फार अवे फ्रॉम द प्लेस वेर यू आर इन तो आप कैसे मैनेज करेंगे यू हैव टू स्टे ऑल अलोन बाय योरसेल्फ क्योंकि हर वक्त कोई नहीं रह सकता पेरेंट्स भी दे आर एम्प्लॉयड एंड दे हैव टू स्टे वेयर दे आर सो हाउ विल यू मैनेज Yes. एवरीथिंग बाय योरसेल्फ मैम एक्चुअली आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन की बाद से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के समय मैं हॉस्टल में रही हूँ, और मुझे पता है कैसे न्यू सिचुएशन और न्यू एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना है.
और जब भी मुझे हॉलिडे मिलेगा या हॉलिडे हॉलिडे को मैं अपने घर के मेंबर के साथ घर में आ सकती हूँ, और मैं फ़ोन में भी बात कर सकती हूँ, इसलिए मुझे मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है साउथ इंडिया में पोस्टिंग्स। ओके, ऑलराइट। तो मान लेते हैं कि आप एक एएफओ हैं एंड आपके पास एक फार्मर आता है और उसके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब जो भी लोन सैंक्शन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, उसके पास वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है एंड स्टिल उसको बहुत ही अर्जेंसी है, वो आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैम हमें लोन चाहिए, और मतलब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसको, अदरवाइज उसके बहुत फाइनेंशियली उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? मैम पहले तो मैं उनकी सिबिल चेक करने की कोशिश करूँगी। उसको सिबिल स्कोर क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है, पिछले साल या इससे पहले उन्होंने कोई सिबिल लोन लिया है या नहीं। और फिर मैं डॉक्यूमेंट्स उनको बोलूँगी कि डॉक्यूमेंट्स तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो रिक्वायर्ड है, जैसे कि लैंड डॉक्यूमेंट्स या कोई एड्रेस प्रूफ। उनको बोलूँगी, कन्विंस करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद वो मैं हायर अथॉरिटी के को बोल के कोशिश करूँगी उनको उनके लोन को सैंक्शन करने के लिए। ओके, ऑलराइट। बैंक्स में अक्सर जो भी स्केड्यूल होता है दैट इज हेक्टिक, एंड ऑब्वियसली आप एक ऑफिसर के लेवल पे ज्वाइन होंगे, तो दैट मीन्स यू विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, तो आप अपना शेड्यूल कैसे मैनेज करोगे? लाइक आपको घर भी जाना है एंड यू हैव टू प्रिपेयर फूड बाय योरसेल्फ, आपको ट्रैवल भी करना है, आपको फील्ड विजिट भी करना है। बीइंग अ गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल यू फेस एंड हाउ यू विल टैकल देम? मैम मुझे लगता है अगर सब फील्ड में ही होता है वो जॉब का प्रेशर। अगर मैं अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करूंगी कि इस समय मुझे उठना है, उसके बाद फूड बनाना है अपने लिए, और उसके बाद इस टाइम से इस टाइम तक मुझे बैंक में काम करना है। तो अगर मैं अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करूंगी, जो मैं अभी भी करती हूँ ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम, अगर मैं अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करूंगी तो वो प्रेशर वाली कोई सिचुएशन मैं आने ही नहीं दूंगी। अ, मैं अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करूँगी, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ मैं मेरे जॉब को परफॉर्म करूँगी मैं। All right, beautiful. So, Isha, supposedly you are an AFO and you have a slight conflict with one of your seniors, जो कि आपको लगता है आप उस सिचुएशन में सही थी, एंड मे बी सपोजिटली वो गलत हैं, या फिर वो आपकी बात उस तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ द स्टाफ उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, या फिर कुछ भी सिचुएशन ऐसी आई कि आपको उस बात का बुरा लग गया, हाउ विल यू टैकल दैट सिचुएशन? मैम पहले तो वो मेरे सीनियर हैं, मैं उनके साथ बुरी बर्ताव नहीं कर सकती हूँ। मैं उनको बोल के अच्छे से बोल के बोलने की कोशिश करूँगी, बोल के समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर मुझे कोई सीनियर डाँट दे या कोई भी सिचुएशन में हो सकता है मेरा भी गलती हो, तो उस सिचुएशन में मैं उस सिचुएशन को कामली हैंडल करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मुझे वो जॉब अच्छे से परफ़ॉर्म करना है। यही यही मेरा कोशिश होगी मैम। ओके। जैसे कि आप वेस्ट बंगाल से हैं, तो और आपने ग्रेजुएशन और पीजी अपना हॉर्टिकल्चर से किया है, तो आप अपने सराउंडिंग्स में आपने हमेशा से ऐसे कौन से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देखे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ओके मैम मेरे सराउंडिंग्स में तो ज़्यादातर लोग राइस ही कल्टीवेशन करते हैं। बट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में यहाँ पर लोग वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर ये सब कल्टीवेट करते हैं। एंड वेस्ट बंगाल कैबेज एंड कॉलीफ्लावर में फर्स्ट रैंक में है। तो वेस्ट बंगाल से ये सब वेजिटेबल क्रॉप्स प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो कोई स्पेशल वेराइटी है वहाँ की जो आपने स्टडी करी हो या आपने पढ़ी हो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो स्पेसिफिकली मैम वेस्ट बंगाल में फेमस मैम कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए मैम है? कैबेज एंड हॉर्टि कॉलीफ्लावर, यस, बोथ। कैबेज एंड कॉलीफ्लावर के लिए तो स्पेशल ये पूषा मुक्ता है फॉर कैबेज एंड मैम ऐसे स्पेसिफिकली मैं कैबेज कॉलीफ्लावर के लिए नहीं पढ़ी हूँ, बट मैं पोटैटो के लिए पढ़ी हूँ। मैं बोल सकती हूँ? हाँ पोटैटो की हाँ, एक बताइए। वेराइटी यहाँ पर हम्म। बहुत फेमस है, वो नेम है उसका बादामी आलू करके। वो ज्यादातर पोटैटो राउंड शेप में होता है, वो उसका साइज वो माने अंगूठा जो है ना, अंगूठा की तरह होता है, माने स्मॉल साइज, एंड द साइज इज जस्ट लॉन्ग एंड स्मॉल साइज, नॉट दैट राउंड शेप। ये एक वेराइटी है।
ओके, और उसकी मैं कोई न्यूट्रिशनल स्पेसिफिसिटी है, कोई न्यूट्रिशनल एडवांटेज है उसका? न्यूट्रिशनल एडवांटेज तो मुझे अच्छे से नहीं पता है उसके बारे में। वो खाने में बहुत अलग टेस्ट देती है, वो ओके, ऑलराइट। वो वाला। ओके ईशा, मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे, जो जनरलाइज्ड क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर किया। जो भी सिचुएशंस मैंने आपको दी, 3 सिचुएशंस मैंने आपको दी थी, तीनों आपने ब्यूटीफुली टैकल करी। बस आप स्टार्टिंग में, अब तो नहीं, जब जैसे आपने फ्लो पकड़ा तब आपने इजीली आंसर्स करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा अटक रहे थे, शायद आप नर्वस थे स्टार्टिंग में, आपको आता था लेकिन यस आप मैम। नहीं रहे थे स्टार्टिंग में। यस हाँ, मैम। तो जैसे आपने बाद में पेस पकड़ा ना, जो मैंने आपसे जो जो भी पूछा आपने फ्रैंकली एकदम बताया, सारी चीजें बताई, तो आपको स्टार्टिंग से ही वैसा पेस मेंटेन करना है। आपका इंटरव्यू कौन सी डेट को है ईशा? मैम 27 को है। 27 को है, तो ट्वेंटी आपके पास सेवन बहुत टाइम है आपके पास फिर। तो यस। आप तब तक प्रैक्टिस करिए। आप जब प्रैक्टिस करेंगी तो ही आप जो एक फ्लो है ना, वो एक स्टेबल फ्लो मेंटेन कर पाएंगी। स्टार्टिंग में लग रहा था कि आप थोड़ा सा नर्वस हैं, बट बाद में आप नॉर्मल हो गए थे उस टाइम पे। तो आपको नॉलेज है सारी चीजों की, सारी स्कीम, सारी चीजें आपने सही बताई। बस आप अपना कॉन्फिडेंस और वो जो नर्वसनेस है उसको थोड़ा सा कम रखिएगा। बाकी आपने लास्ट तक जो भी आंसर्स किए सारे बहुत अच्छे किए। और सेकेंडली ईशा, जैसे आपने वो वैरायटी बताई पोटैटो की, तो उसके बारे में अगर आप मेंशन कर रहे हो वहां, तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लेना कि ऐसी क्या अच्छा। स्पेशलिटी है उसमें जो बाकी वैरायटीज में नहीं होती। एक तो आपने शेप बताया वो ठीक है, बट कोई ऐसी न्यूट्रिशनल एडवांटेज होता होगा उसका भी, तो आप वो अच्छा। स्टडी करना। क्योंकि अगर आप वो अच्छा मैम। मेंशन कर रहे हो तो फिर आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर वो पूछ ठीक है लेते हैं तो मैम। आपको पता होना चाहिए उस बारे में। मैम एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मुझको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती है, और इंग्लिश में भी थोड़ा-थोड़ा। तो मैं, मेरा फ्लो क्या मैं बोल रही हूँ ठीक से? मैंने मुझे ये हाँ, प्रॉब्लम नहीं नहीं, होती है। आप हिंदी एकदम परफेक्टली बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इजीली अच्छा। अंडरस्टैंडेबल था। अच्छा, मुझे लगा नहीं कि आपको प्रॉब्लम है हिंदी बोलने में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे समझने में। मैं शुरू-शुरू में था, मैं प्रैक्टिस से ये ठीक अच्छा, करके। अच्छा। ऑलराइट। नहीं नहीं, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि आपको प्रॉब्लम है। आपने प्रैक्टिस जो भी किया है अच्छे से किया है, लग नहीं रहा है बिल्कुल। अच्छा, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। ऑलराइट, थैंक यू ईशा। स्वास्तिक। Yes, ma'am. ऑलराइट, गुड मॉर्निंग स्वास्तिक। Good morning, ma'am. ओके, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good morning, ma'am. My name is Swastik Singh. I belong to Balasore district of Odisha, which is also known as Sand City of Odisha or Granary of Odisha and Missile City of Odisha as well. I have recently completed my graduation from Odisha University of Agriculture and Technology. I am a single child. My father is a lawyer and my mother is a housewife. Generally, I don't get much leisure time, but whenever I get free time, I love to play cricket and chess. And I believe that handling difficult situations and difficult person with calm and composure is my biggest strength. ओके, यू टॉक्ड अबाउट योर स्ट्रेंथ, व्हाट डू यू कंसीडर एज योर वीकनेस देन? I believe my weakness is I feel little nervous while I have to speak in public. I'm public speaking, but I am working on it. Okay, then if a situation comes that you have to address a public of farmers going in a rural area, you have to make them understand about the recent scheme of the government. How will you speak to them if you are nervous in front of the public, you can say? I'm actually working on it, and I think I can do that if I have adequate knowledge about it. I'm Okay, especially feel nervous when feel like I have little bit less knowledge about it. okay, all right. Okay, so you mentioned that you are the only child of your parents. So if you are posted very far away from your place of residence and nobody is there to take care of your parents there, so how will you manage that stress? Ma'am, if I get a job, I will surely do a health insurance for them. And I have other family members here as well. My all the relatives lives in Baleshwar, so it won't be a problem. And I am living for past 7 to 8 years outside my house. After 10th, I have living in rural urban area, and my house in a rural area. It won't be a Okay. problem. Okay, you answered this very beautifully. The first thing that you mentioned was health insurance, and that is a very good thing. You should mention this if asked. Okay.
Secondly, you mentioned about insurance. Is there any scheme in agriculture that is related to crop insurance or anything? Yes, ma'am. One is PM Fasal Bima Yojana. That is for if crop failure happens, and one another is PM Kisan Mandhan Yojana. It's for farmers who want to. May I speak in Hindi, ma'am? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी में बोल सकते हाँ। अब ये मतलब ये फार्मर के लिए है जो कि मतलब 18 से 40 के उम्र के बीच में वो ज्वाइन कर सकते हैं, और 60 के बाद से उन्हें मंथली 3000 मिलेगा, पीएम कामधन योजना। और पीएम फसल बीमा योजना में अगर क्रॉप फेलियर हो गया, कुछ हो गया, तो उनका सब्सिडी के हिसाब से गवर्नमेंट वो भरती है। हैं। ओके, तो सम्मान निधि योजना क्या होता है फिर? मैम currently I can't recall it properly, but I will look on it. ओके, कोई बात नहीं। आप करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में डिफरेंस मुझे बता सकते हैं, क्या होता है? Ma'am, current account is basically for business related things, for and savings account for individual or normal people. Savings account gives interest and current account doesn't give interest. In savings account, the maximum deposit amount is fixed, but for current account, it's not fixed. It's quite higher than the savings account. ओके, ऑलराइट। आप कोलेटरल से क्या समझते हैं? व्हाट इज कोलेटरल इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर? कोलेटरल मीन्स जब कोई फार्म इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, जब कोई फार्मर लोन लेने जाता है तो वो अपना कुछ एसेट सिक्योरिटी के तौर पर रखता है, उसे कोलेटरल बोला जाता है। अगर फार्मर को बोला जाए तो वो अपने लैंड रखेगा, या फिर मतलब उसके हाउस की प्रॉपर्टीज रखेगा, बहुत सब रखेगा। ओके, स्वास्तिक, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि आप एएफओ हैं एंड आप बैंक में एम्प्लॉयड हैं, आप बैंक में काम कर रहे हैं एंड बैंक में कुछ इम्पोर्टेंट ऑडिट्स या कुछ इम्पोर्टेंट काम चल रहा है। ओके, उसी वक्त आपके घर पे एक फंक्शन है, बिकॉज आप ओनली चाइल्ड हैं तो आपको वहां रहना इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आप दोनों सिचुएशन एक टाइम पे कैसे मैनेज करेंगे? मैम, माय प्राइमरी फोकस विल बी माय वर्क after that, but I will try to manage both things with properly, but my primary focus will be work. If my family functions, if I have to miss one, then I will miss the family function, ओके, and I will तो try to फिर manage it through my cousins and other people around my house. ओके, ऑलराइट। तो एक और सिचुएशन देती हूँ मैं आपको। लाइक आपके पास कोई फार्मर आता है एंड ही इज अ विलफुल डिफॉल्टर। उसने पिछले टाइम में जो भी डिफॉल्ट्स किए हैं वो जानबूझ के किए हैं। लाइक ऐसा नहीं था कि उसके पास मॉनेटरी इश्यूज थे कि वो लोन रीपे नहीं कर सकता था, बट उसने किया नहीं। एंड नाउ वो फिर से आपके पास आया है कि मुझे एक लोन करवाना है एंड इट इज वेरी अर्जेंट, बहुत अर्जेंट सिचुएशन है। तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? अगर मैम उसका मैं पास्ट रिकॉर्ड चेक करूंगा, वो एक विलफुल डिफॉल्टर है, तो उसको लोन देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैम उसने वो पहले जो लोन लिया था और उसने वो रीपे नहीं किया है अभी तक, तो मैं उसके बारे में मैं अपने सीनियर से बात कर सकता हूँ, या फिर एक जो एक्ट है सरफेसी एक्ट, उसके अंडर जाके हम उसका जो एसेट्स वगैरह है वो हम बेच के वो लोन रिकवरी कर सकते हैं। या फिर अगर वो जेन्युइनली कोई विलफुल डिफॉल्टर है तो उसके खिलाफ हम क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं कोर्ट में। ओके, स्वास्थ्य, एनपीए क्या होता है? एनपीए में नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर मैम और था उसके बारे हाँ जी, हाँ जी, हाँ में, जी। मैम नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर कोई मतलब अगर कोई फार्मर लोन लेता है वो उसको रीपे ठीक से नहीं करता है, मतलब अगर 12 महीने से ज्यादा हो जाता है तो उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। ओके, आपको मत्स्य संपदा योजना से क्या समझ आता है? मैम, पीएम मत्स्य संपदा योजना was started in 2019 and 20. It was meant for 2024-25, which was just completed its 5 year, but now it's been stretched to 25-26. Now it has उसका record production आया है अभी 195 ton, and its current productivity is 4.7 ton per hectare. And it mainly focuses on fishermen and जो भी लोग उसके रिलेटेड है, उनको इनकम को सिक्योर करना और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, और मेराइन प्रोडक्ट फूड हेल्थ को थोड़ा बेटर करना। ओके, स्वास्थ्य, आरबीआई का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में, या फिर आप कहो कि हमारी बैंक्स को मेंटेन करने में आरबीआई का बेसिकली रोल क्या है? आरबीआई इज बेसिकली बैंकर्स बैंक।
इट कंट्रोल्स एक बैंक का कितना, सॉरी, इट कंट्रोल्स एक बैंक का कितना मतलब इंटरेस्ट रेट है, मतलब जितना रेपो रेट आरबीआई डिक्लेयर करेगा उसके साथ वो बैंक, मतलब जो बैंक है उसका अपना कुछ इंटरेस्ट रेट ऐड करके वो इंटरेस्ट देगा। और वो फाइनेंशियली एडवाइजर के तौर पर काम करता है स्टेट और सेंट्रल बैंक के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है और करेंसी इशू करता है, और वो देखता है फॉरेन एक्सचेंज वैल्यूज को भी चेक करता है, और वो सीआरआर एसएलआर ये सबको भी देखता है। ओके, आपने सीआरआर और एसएलआर बोला। डू यू नो अबाउट रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? यस मैम। मैम क्या होते हैं रेपो वो? रेट मीन्स, मैम रेपो रेट मीन्स जब एक बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो उसको आरबी मतलब उस बैंक को आरबीआई को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि आरबीआई डिसाइड करता है। उसको रेपो रेट बोलते हैं। अभी करंटली रेपो रेट इज 5.25%। रिवर्स रेट इज when that bank deposits its money in RBI or RBI borrows money from that bank. It's called reverse repo rate, and current reverse repo rate is 3.75%. Okay. What do you understand by direct bank transfer, DBT? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मीन्स जब मतलब अगर कोई एक एग्रीकल्चरल स्कीम्स आ गया तो उसके मतलब एक फार्मर को पैसा भेजना है तो उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजा जाएगा करके, किसी और के थ्रू उन्हें डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसके बेनिफिट्स मतलब और मनी। ओके, क्या अभी ऐसी स्कीम कोई थी पास्ट में या अभी रनिंग में जो कि फार्मर्स को ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के थ्रू मॉनेटरी हेल्प दे रहा हो? मैम पीएम किसान सीएम किसान आर गिविंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओके, आपने जन धन योजना के बारे में सुना है? यस मैम। व्हाट इज इट? मैम पीएम जनधन अकाउंट इज जो जीरो अकाउंट है उसके तहत, मतलब जो बीएसबीटी अकाउंट है वही है जनधन अकाउंट, पर उसके अंदर जनधन अकाउंट के अगर एक्स्ट्रा स्पेशली है, अगर एक्सीडेंटली डेथ हो गया ये हो गया तो इंश्योरेंस आपके लिए 2 लाख तक है। और नॉर्मल डेथ भी हो गया तो फिर 30 लाख तक का इंश्योरेंस है। और ये मेनली जीरो अकाउंट को प्रमोट करता है, जो रूरल हुड पे गरीब लोग हैं, पर लोग हैं जिनका अकाउंट्स नहीं है, तो उनके थोड़ा बैंक के तौर पर लगा सके और डेवलप कर सके उनके फाइनेंशियली। ओके, आपने एंड और बीएसबीडीए। एग्रीकल्चर स्कीम। आपने मैम और बीएसबीडीए एग्रीकल्चर की, मेंशन किया। आई एम सॉरी। नो नो यस नो, मैम। यू कंटिन्यू कंटिन्यू करिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर पूछ लूंगी। आई वाज सेइंग कि अगर कोई एग्रीकल्चर स्कीम से और कोई स्कीम से उनको उनके साथ जोड़ना, पीएम हम्म। जनधन अकाउंट का है। ओके, आपने एक चीज मेंशन करी, बीएसबीडीए अकाउंट्स। अभी आपने जब जनधन बताया तो आपने बताया, तो होते क्या है ये बीएसबीडीए अकाउंट? बीएसबीडी अकाउंट इज बेसिकली जीरो अकाउंट। Ma'am, I ओके। can't recall the full form of it currently, but I will surely look upon it. It's a zero account, but it doesn't gives any benefit like insurance or other things. It's just a zero account. If normal people can come and open an account. ओके, तो स्वास्तिक, आप जैसे बोल रहे हो ना कि जीरो अकाउंट है, तो जीरो बैलेंस जोड़ो आप बीच में। आप बैलेंस नहीं बोल रहे हो, जीरो बैलेंस अकाउंट होती है। ओके। एंड सेकेंडली स्वास्तिक, मैंने अगर आपने मेरे पहले इंटरव्यूज देखे हो जो मैंने लिए हैं, मैंने एक दो बार पूछा था बीएसबीडी अकाउंट, लेकिन किसी ने बताया नहीं था। आपने उस चीज को मेंशन किया, भले ही ठीक है आप अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, बट आपने उस चीज को मेंशन किया। ये मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट आपको बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज ऑन टिप्स हैं, आपको नॉलेज है काफी। और सारे क्वेश्चन, सारी स्कीम्स सब आपने अच्छे से बताई, बट आप एक सम्मान निधि भूल रहे थे, तो आप स्कीम्स को थोड़ा सा देखना। बाकी बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज के अगर बात करें तो आपको फुल टू फुल नॉलेज है, ऑन पॉइंट नॉलेज है, आपकी बैंकिंग नॉलेज बहुत अच्छी है, ये मैं कहूंगी। एंड सेकेंडली, आप स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत मुझे नर्वस लगे, बाकी आप नर्वस नहीं लगे। और हाँ, एक और चीज जो आपने बोली थी कि जो आपने, जब मैंने वीकनेस पूछी तो आपने बोला कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग में अगर मतलब होता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। इस आंसर को मैं आपको रिफ्रेम करके बताती हूँ, आप ऐसे ही बोलना वहां पे, अगर वो पूछे वीकनेस तभी आप ये बोलिएगा कि सर मैं ये मत बोलिएगा डायरेक्ट कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा मैं नर्वस हो जाता हूँ। ये बोलना कि सर अगर मुझे उस चीज के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं है तो मैं उस चीज को पब्लिक एड्रेस करने से थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ऐसी कोई नॉलेज मैं उन तक ना पहुंचा दूं जो शायद मुझे कंप्लीटली नहीं पता, या हो सकता है जब तक मुझे उस चीज की नॉलेज नहीं है
कुछ गलत मुझे पता हो तो मैं बता दूं, अगर मैं उस चीज की फुल नॉलेज ले लूंगा तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। ये चीज आप बोल देना कि जब तक मुझे उस चीज की नॉलेज नहीं होगी तब तक मैं नर्वस रहूंगा वहां पे बोलने में। तो ये आप ही के लिए एक एडवांटेजेस चीज हो जाएगी। बाकी आपने सारी सारी चीजें सब बहुत अच्छा बोला। एंड बस आप स्कीम्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैम मेरा वो हिंदी फ्लुएंट है कि नहीं वो पूछना था। मतलब मैं हाँ, उड़ीसा नहीं से नहीं हूँ नहीं तो मैं जनरली हिंदी में बात नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं लग रहा था आपके हिंदी से आप फ्लुएंट हैं हिंदी में। और हाँ, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल सकते हो, जैसे कि आप मिक्स बोल रहे थे ना अभी। तो आप मिक्स बोल सकते हो, कुछ सेंटेंसेस हिंदी में कुछ इंग्लिश में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप हिंदी बोलो चाहे आप इंग्लिश बोलो, आप मिक्स बोल रहे थे, मिक्स भी सूटेबल था। लाइक कुछ लाइंस हिंदी में कुछ लाइंस इंग्लिश में, वो भी सूटेबल है। आप आराम से हिंदी बोल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अंडरस्टैंडेबल थी वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एंड ऑल द बेस्ट आपके इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। थैंक यू।